So is it visible? Online student? Yes, sir. Okay, let's begin with the another work of Photoshop designing. So in today's session, we will start working on a graphical designing part. It's related to the tool like text. Okay, so अभी तक हमने shapes को काम कर रहे थे और आज हम text पे शुरू करेंगे. So we will go in a print. Graphic mostly printable होगा, so print पे ही आ जाते हैं. There is a size. So today we are going to cover text tool. So we will take an example of, is that visible? Visiting card, right? Is it okay? So the task is for the text. So learning text, we will begin with the text assignments kind of thing. So first of all, when we start working on a kind of any fixable standard size of designing, like a magazine cover page or visiting cards or iCards, so there would be a fixed size for that. Okay, so in this case, we need to understand the sizes. As a designer, we need to understand the sizes, specific sizes, the standard sizes of the visiting card or iCard or magazine cover pages, right? Brochures. So sizes always matters. When we start working on any kind of design, we need to understand the specific size and the standard size of printable document, right? So the size is for visiting card is 3.5 to 2 inches. Height would be 2 and the width would be 3.5. So there is a width. So I will just change the digit word into 3.5. Height would be 2. If I want to design in a landscape or portrait, we can design it any orientation. So we just take landscape, right? And reduce the resolution because I don't want to take print. Okay, so I just reduce the size. It's around 150. And sometime I found lots of students having this issue. They found the color mode would be grayscale, so their colors not picking. So they're just working on a grayscale. So you have to change out the mode when you work with the mode. So you need to change the color mode. So always use RGB and CMYK. CMYK when you want to take a print out. So in future you want to submit your assignments like visiting card or magazine cover page. So you want to take a print out. So you need to convert it into CMYK mode. So you found the real original color tones of your design, right? So if you make it in a RGB, so we can sometimes we miss proper or accurate colors, right? So always use CMYK for the printing well point of view, right? So I don't want to take print, so I am working with the RGB mode only, right? Then creating documents. So this one is the size, right? And always we have an option of ruler. So when you want to see anything, just go in a view, and here is the option for ruler. Ruler is just for the marking and the measurement where we want to start working on that. So, and the shortcut keys for the ruler is view and control R. So we can hide it through control R and we can appear it with the help of control R, right? So just click and drag the size so we can measure it with a 0.0. So here is the size, and this was 3.5 in inches, and this one is 2. So just mention the points कि हमें कितना gap और कितना sizes चाहिए. So we begin with the shape. So basic process of designing we are going to work, right? Before start typing anything, before working on any kind of design, we need to mark bleeding space. Bleeding space, which is the blank space from the corners, right? So suppose bleeding space would be 0.2. So make a zoom, control plus. So I'm just seeking a square. How it would be to check out the width and the height in a column. When I drag the selection, so you can see width 0.093 and height 0.093, right? So it's a proper square, and the 1 to 0.3 is a difference. So just select it, take another layer,
just fill Control D, and now I'm just marking the points. यहां से आपको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है, राइट? इस पॉइंट से हमें हेल्प मिलेगा क्या कि वी कैन टेक अ प्रॉपर मार्जिन फ्रॉम द 4 साइड्स, इक्वल साइजेस हम मार्क कर सकते हैं एंड जस्ट यूज दिस पॉइंट, राइट? देन drag, right? So this is the better technique to take proper marking, right? Now you can delete this space. अभी मेरे पास प्रॉपर मार्किंग हो गया है साइज का, वो जो मैंने स्क्वायर लिया था उसको डिलीट कर दिया, स्क्वायर ने मुझे क्या हेल्प किया, प्रॉपर मार्किंग चारों तरफ से मुझे इक्वल मिल गया. इज इट ओके? सो यू कैन टेक प्रॉपर मार्जिन फ्रॉम बोथ साइड, इट्स कॉल्ड ब्लीडिंग स्पेस, राइट? So before working anywhere on a typing point of view or designing point of view, we need to make a bleeding space always in a printable document. If we are working for the magazine cover page or greeting card, hoardings, banner, brochures, pamphlet, posters, anything, any printable ad design, or we are working for the web ad, right? Emailers. So we need to understand the importance of margins, blank space, bleeding space, right? Always use bleeding space. Now we need to design the card. So before designing, we need to understand what the content we have to put on the visiting card. So what is the proper and appropriate content for the visiting card? What is? Just let me clear. आप सबने visiting card देखे होंगे. So everyone knows about the visiting card, and we are going to design a visiting card. So what is the element of visiting card? क्या क्या content होता है visiting card पे? कौन बताएगा? हाँ, क्या कंटेंट हमें विजिटिंग कार्ड पे चाहिए होता है? एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस, सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वन एग्जैक्टली, वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज द लोगो ऑफ द कंपनी और ब्रांड, जिसको विजिटिंग कार्ड रिप्रेजेंटेटिव है उस कंपनी का लोगो, आइडेंटिटी, और वी कैन से द नेम ऑफ द कंपनी, राइट? द सेकंड वन, second most important thing, name of the, exactly, name of the person या employee जिसका वो विजिटिंग कार्ड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी को, राइट? उसी के लिए होगा ना. विजिटिंग कार्ड का पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द पर्पस फॉर विजिटिंग कार्ड? सर कांटेक्ट करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स क्रिएट करने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए. इट्स जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटिंग, इट्स नॉट आई कार्ड, so it's not identity card. So definitely we don't want to put our photograph on that. That's the basic difference between iCard and the visiting card. So the content would be different. If we are working on an iCard, so there would be the content would be different, and for the visiting card, there would be a different kind of content we have to put on that. Is it okay? So the important thing, logo of the company. So you guys design any logo. आपके पास logo है ना कुछ? आप लोगों ने किया है? हाँ भाई, सबने बना लिया है ना कुछ लोगों को. That's great. So you use your logo for the design point of view. Okay. अभी कंपनी का नाम और लोगो दो इंपॉर्टेंट चीज हुई, and we can design visiting cards just on the frontal side, on the back side also. Both sides we can use for that, right? Suppose we design a single design on a front side only, back side का डिजाइन नहीं चाहिए, तो हम एक सिंगल पैनल डिजाइन बनाएंगे. Both panels, it means front और back, both panels. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? सिंगल पैनल. सिंगल पैनल में कंटेंट सेम होगा, ठीक है, लेकिन डिवीजन किस तरीके से किया जाएगा? डिवीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिवाइड द फ्रेम्स. सपोज देयर वुड बी टू sections is like one is for the company point of view, where we can put the data related to the company, like logo of the company, like name of the company, website for the company, right? And another section when we use for the employee point of view, that we can put the name of the employee, and we can put the designation, we can put the contact number of the employee, and then we can put the email ID of the employee, all the information related to the employee. So as a designer, we have to divide the frame in two sections, right? If we are working with the both sides, so we have two options. We can put the first section for the company, so all the information related to the company we can put on the front side, then on the back side we can put the information related with the employee.
right? But we have a single side, so we need to divide the print, right? So maximum information is related on visiting card for the employee. So we can take the maximum size for the employee point of view, right? So as a graphic designer, we can use the shapes, we can use the different kinds of design. So for the creating a different design, क्या हो रहा है यार? I'm just again using the shape tool, right? I have one shape tool. So I want a square. Right? Square दिख रहा है आप लोगों को? Same size you can take. Dragon. Need a different layer. Okay, always use a different layer. Pressing Alt backspace for filling the color. Then Control D. Control D is for deselection and Control T for transformation. So अभी मुझे सेक्शन को डिवाइड करना है. डिवाइड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है. मैं आपको अलग अलग तरीके के डिजाइन के साथ काम करने के लिए दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से हम डिफरेंट डिजाइन के साथ काम कर सकते हैं. प्रोपोर्शन समझ आ रहा है आपको? एक डिजाइन हो गया ये, राइट? या हम कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम और कंपनी से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ दे सकते हैं. बाकी एरिया को हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, राइट? मेरा 2 सेक्शन डिवीजन अलग अलग क्लियर हो गए, राइट? इसके अलावा मेरे पास और ऑप्शन क्या हो सकते हैं? एज अ ग्राफिक डिजाइनर सेक्शन डिवीजन करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. कंट्रोल डी, मैं एक और अलग लेयर ले रहा हूँ, एंटर प्रेस करके ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आता हूँ, अनदर लेयर लेता हूँ, राइट? इसको हाइड करता हूँ और एक और शेप ले लेता हूँ. मैं केवल आपको शेप को, डिविजन्स को अलग अलग करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है? किस तरीके से आप डिफरेंट डिजाइन को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो. सपोज मैंने ये सेक्शन लिया, यहाँ मैंने इसको चेंज किया और इसको मैंने सर्कल ले लिया, राइट? इसको मैंने कट किया, राइट? और यहाँ मेरे पास एक और सिलेक्शन आ गया. अभी इसको मैं कैसे यूज कर सकता? सपोज मैंने कलर फिल किया. ओह सॉरी, प्रॉब्लम समझ में आया आपको क्यों हुआ था ये? कंट्रोल एंटर, देखो मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ. रीजन समझ आया क्यों हुआ ये? इधर वेदर, गुड. सो यहाँ हमें क्या करना है? इसको हमें रिड्यूस करके क्या करना है? डिजिट को. कभी भी ऐसा इश्यूज आता है, व्हेन यू फेस दिस काइंड ऑफ इशू, डेफिनेटली चेक आउट योर कंट्रोल पैनल, राइट? In a feather, always you need to put it on a 0. Control Z, Control D, or we can delete this layer. Duplicate, okay. राइट? सो हम डिजाइन ले सकते हैं, डिफरेंट एंगल, राइट? अब आप शेप्स को देखो किस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं. 1 2, राइट? इसके नीचे अगर मुझे शेडो दिखानी है, सो हाउ कैन वी क्रिएट द शेडो फॉर दैट?
फेदर कर सकते हैं, एक ऑप्शन हमारे पास, उसको हम यूज कर सकते हैं हम उसको। और मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था, वी कैन यूज द ब्लर ऑप्शन। फेदर के साथ डिफरेंट डिफरेंट टोन्स को हमें कॉपी करके डाल सकते हैं और लाइटर और डार्क शेड क्रिएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था उस वाले ऑप्शन में, जब हम अभी क्रिएट अ कंप्यूटर स्क्रीन, तो वहाँ मैंने आपको शेडो क्रिएट करना बताया था, राइट। सो इस तरीके से आप इस टूल को यूज करके प्रॉपर डिजाइनिंग यूज कर सकते हो। हम शेप्स को कैसे डिफरेंट कर सकते हैं, दो अलग अलग सेक्शंस को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन पिक एनी काइंड ऑफ कलर्स। मैं यूज कर रहा हूँ केवल कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स माय कलर पैलेट। ओके, एवरी डिजाइनर हैज देयर ओन कलर पैलेट, कि उसका खुद का कंसेप्ट किस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन के साथ उसे काम करना अच्छा लगता है। सो इट्स जस्ट योर ओन एस्थेटिक सेंस कि आपको किस कलर्स के साथ काम करना अच्छा लगता है। और समटाइम for the client point of view, we need to understand the client concept, right. So what exactly client want and what colors client exactly need, so we have to work out according to the client requirement, or sometime with the symbolic color combination related with the कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी कंपनी का लोगो किस तरीके कलर का है, कॉम्बिनेशन किस कलर का, सो वी कैन चेंज द कलर कंसेप्ट, राइट। So as a designer, who would be the good designer in future, they should understand about the concept of color theory, right. We cannot pick any colors from the color palette, and Photoshop doesn't know about the color palettes. हम यहाँ घूम रहे हैं, अभी Photoshop नहीं बताएगा कि आपको यहाँ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। Am I right? Photoshop doesn't know about that कि कौन सा कलर विजिटिंग कार्ड पे होना चाहिए, he don't know। तो हम यहाँ क्या करेंगे, it's our own color sense or our color theory, we have our aesthetic sense, we need to use our aesthetic sense and pick the color. We can pick any kind of colors, right. So definitely we can use different patterns for the divisions। एक मैंने आपको बताया, हम इसको फिर अगर हम दूसरी लेयर पे देखते हैं, हम फिर इसको चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। तो हम कभी फर्स्ट डिजाइन से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कौन सा डिजाइन ज्यादा बेटर लग रहा है, सो वी हैव टू पुट डिफरेंट लेयर्स एंड फिक्स इट। अभी मैं केवल डिफरेंट डिजाइन को यहाँ चेक कर रहा हूँ कि क्या बेटर लगेगा। तो अनदर शेप डिवीजन, so here you can see the half, right. Another shape, right, and we can fill the color। डिवीजन समझ आ रहा है आप लोगों को। सो पैटर्न और डिजाइन करना हमारा काम है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन डिजाइनर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि हम किस शेप को अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं, फिर कुछ नया पैटर्न सोचना है, तो आपको फिर डिफरेंटली शेप के साथ काम कर सकते हो आप। राइट, सो अभी हम डिफरेंट डिजाइन को चेक करेंगे, कौन कौन से पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है। एक तो ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है।
अभी कौन सा हमें बेस्ट लग रहा है हम उसको यूज करेंगे। सपोज क्लाइंट के हिसाब से अगर हम बात करें, हम उसको बोलते हैं कि ये वाला डिजाइन मुझे ज्यादा बेटर और कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर लग रहा है, सो आई विल गो विद दिस, ओके, और आई कैन यूज दिस वन आल्सो, इट्स लुक अ लिटिल बिट creative. We can use the blank space positively, so I think it's look much better. अगर हम इसको चेक करना चाहेंगे बेटर क्यों है, so we can margin, take a margin from the center line, so just use the 1 point. यहाँ 2 है आपका पास, so ये हुआ एक, राइट, और इसको भी हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, राइट। so अभी कंट्रोल टेक्स्ट ओवर, अभी we need a design a logo on that, right? so logo डिजाइनिंग का अभी मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, सो मैं एक लोगो डिजाइन कर लेता हूँ क्विकली। ठीक है, सर्कल, राइट, राइट, और मेरा डिजाइन और किस चीज के लिए करूं वो स्पेसिफिक ये है। कोई कंपनी आपको प्लान करनी चाहिए हमेशा। एक मेरा कॉन्सेप्ट ये गया था, जब भी आप किसी चीज को आप डिजाइन पे काम करो, सो यू नीड टू फाइनलाइज द कंपनी। सपोज कंपनी का नाम हम क्या रख सकते हैं, किस चीज की कंपनी रख सकते हैं, उससे रिलेटेड हमारे डिजाइन होने चाहिए। आई एम यूजिंग सर्कल, we'll take any HR company, so we can use the text. I'm working with the text also, so here we are working on a text logo. जब भी आप टेक्स्ट टूल उठाओगे, सो मैंने टेक्स्ट टूल पिक किया यहाँ एंड जस्ट क्लिक इट ऑन द लेयर, सो टेक्स्ट टूल ऑलवेज मेक्स ऑन द डिफरेंट लेयर, हमेशा अलग लेयर पे काम करेगा टेक्स्ट टूल। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, सो यू कैन सी द डिफरेंस, अलग लेयर है, और इसको कंट्रोल ए करके आप सारा सेलेक्ट कर सकते हो, और देन यू राइट योर टेक्स्ट कि मुझे सपोज क्या लिखना है। मुझे सपोज मैं एक ही टेक्स्ट लिखता हूँ, HR, राइट, सो HR वर्ल्ड करके एक मेरा लोगो है जिसमें कंसेप्ट में HR रखता हूँ, और इसको मैं फॉन्ट को चेंज कर लेता हूँ। सिलेक्शन आपको हमेशा करना है, लेयर सेलेक्ट रखना है टेक्स्ट लिखने के बाद, और ऊपर आपको कंट्रोल पैनल पे जाके आपको अलग अलग फॉन्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज द पार्ट यू कैन स्विच द डिफरेंट टेक्स्ट। अब आपको जो भी बेस्ट लग रहा है, देखो यहाँ क्लिक करोगे और आपको दिखाई दे रहा है, ड्रैग करते जाओगे आपको दिख रहा है, राइट, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरीके का फॉन्ट वहां में अवेलेबल है, समझ आ रहा है। So, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट डिजाइन और बेस्ट लोगो, आपको क्या बेटर लग रहा है। तो ऑप्शंस आप पिक कर सकते हो कोई भी जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। आई विल चेक, यू कैन फाइंड आउट द कलर हियर, राइट, सो मेरा कलर होगा व्हाइट, जो इसका बेस कलर है उसको यूज करूंगा, ठीक है, एंड यूज मूव टूल, Control T, and I will Answer. So ID ID कार्ड आप इससे ऊपर जाके सचिन सर से बात कर लो। इससे ऊपर 4th है ना शायद, 4th या 5th पे होंगे शायद। सपोज ये हो गया। अभी दोनों लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल क्लिक करके जस्ट सिलेक्ट एंड देन यूज कंट्रोल T, सो वी कैन रिड्यूस द साइज फॉर बोथ लेयर,
press enter, and with the help of selection tool, I can place it on the appropriate points, right? Now, how to merge the layers? What's the option for merging layers? So I want to merge this logo layer. तो दोनों लेयर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज हो जाएगा, मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके, देन क्लिक ऑन द राइट क्लिक एंड देन मर्ज लेयर, merge layer. Where is the option? सर रेस्टराइज करना पड़ेगा पहले, रेस्टराइज टैब। कंट्रोल ई, Just use control E and we can merge it, right? So always use shortcuts, control Z, और इसको मुझे थोड़ा सा साइज बड़ा करना है, place it on the center line, right? Right, so another text, जब भी हमें क्लिक करना, सपोज name of the company, so HR World, click on another layer, then write the full name. Reduce the size, जो भी आपको ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम टेक्स्ट को बोल्ड, शार्प, यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। Right, I want to use it in a white color, so again want to change color, control A, selection, pick the color white, okay। so अभी आपको यहाँ देखना है कि कौन सा कलर ज्यादा बेटर लग रहा है, कौन सा कलर बेकार लग रहा है, क्या कलर आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं ये कैसा लग रहा है, ओके ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, आई डोंट नो। सो अभी इसे चेंजेस भी कर सकते हैं। हम यहाँ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, तो बेटर क्या लग रहा है और क्या हम क्रिएटिवली कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट अगेन यूजिंग अ डिफरेंट डिजाइन, कंट्रोल ए and picking the same color tone, okay, control T, just change, just a minute, so picking the red color for vision कि ये क्लियर हो जाए, कंट्रोल T, और इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ यूज करके देखता हूँ यहाँ कैसा लगेगा। आई थिंक इसको मैं रिड्यूस कर दूं अगर साइज को ज्यादा बेटर लग सकता है, या मैं इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ। ओके, आई थिंक मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ और इसको एक बार मैं रिड्यूस करता हूँ। सो टेक्स्ट लिया मैंने वापस, सेलेक्ट, कंट्रोल ए एंड पिक द सेम कलर टोन, ओके, रिड्यूसिंग द साइज। And keep this logo a little bit broader, so using control. Right, so we can change the different design, or we can use different kind of logo, or switch the logo. I think logo is look a little bit odd, so we have to change the logo first. Use a different design for the logo I need to create. I think it could be different.
Always use different designs. So don't satisfy with your single or one design with a single design. It's not like this key you have to working on a design. So definitely you have to try again and again and different design. So here I'm not going to satisfy with my designing. So I'm just working with a different designs, right? So different color tones I am trying to use, combinations क्या better होगा और उसको मैं क्या changes करके अच्छा कर सकता हूँ, मेरा लोगो किस में ज्यादा बेटर लग रहा है, कौन सा डिजाइन मेरे लिए ज्यादा बेटर है. आई एम वर्किंग ऑन दैट, राइट. Here I use this, right? So on the other side I need to mark the different text for the name and other thing. What should I mark for that? Name क्या होगा? Suppose कौन सा name use करें? Suppose the name is change the color. So always use limited color tone. Okay, limited color option, it means always use few 2 or 3 color tones. Don't work out different colors. Okay, so just need select and you can delete it anytime. And this margin lines will help you to create different designs, so proper alignments. And now on the bottom we need a, what we need a mention designation. Suppose reduce the size, and we can change the font also, reducing size, right? And want to take a copy of this layer, so just pressing Alt and drag. फॉन्ट सेम रहेगा, आप यहाँ चेंज कर सकते हो और इसको आप कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, ऑल्ट से और कंट्रोल जे ऑप्शन यूज कर सकते हो. Mansion. Suppose mobile, राइट. ओके, सो यहाँ कंपनी का नाम और कंपनी के इसके साथ हम वेबसाइट दे सकते हैं. तो आप इसी फॉन्ट को मैं यूज करूंगा, तो मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ कंपनी की कुछ वेबसाइट हो सकती है. सो right, now we can make different size of for this. So जिसमें मेरा जो एरिया है वो ज़्यादा बेटर और कंपोज लगे. So मैं इसके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, so जिसमें मेरा डिज़ाइन ज़्यादा बेटर और फिक्स लगे, right? So in this way you can start working on different pattern or different design. So अभी मुझे यहाँ लगता है कि हम कौन सा एक चीज़ है जो यहाँ मिसिंग रह रहा है, ईमेल आईडी आई थिंक वी कैन मेंशन, और यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ईमेल आईडी को मेंशन करने के लिए हम कुछ और क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं पैटर्न्स को, वो आपको देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे नेगेटिव स्पेस आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है,
So we need to use negative space. Negative space, it means the blank space. So we can find out the negative space बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. एज अ डिजाइनर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को बैलेंस करते हो. सो वो एक पॉइंट है कि आपको उसको कंसेप्ट को सोचना है. तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए एड्रेस कंपनी का या इसका आ सकता है, और एड्रेस के लिए हम एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं. एड्रेस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो हम मेल आईडी तो यहाँ दे सकते हैं इसी के साथ. सो वी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. विजिटिंग कार्ड के ऊपर वो सारी डिटेल्स नहीं होती, हम ब्रोशर नहीं बना रहे. नहीं, वो उसके लोगों पर डिपेंड करेगा. कंपनी का हम मेल आईडी दे रहे हैं ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी है ये, ठीक है, एम्प्लॉइज प्रोवाइड करती है. सो hrworld.com, इट्स अ काइंड ऑफ दिस. सो अभी उसके लोगो में वो चीज होनी चाहिए, ठीक है. तो लोगो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट लोगो लिया है, तो हमने क्या किया, केवल मैंने जल्दी से एक टेक्स्ट टाइप कर दिया, ठीक है. अब आप इसे डिजाइन करोगे तो यू कैन मेक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स फॉर दिस, कि आप एक ह्यूमन फिगर ले सकते हो, 5-7 कॉपी करके उसमें एक साथ लगा सकते हो. सो आप लोगो को डिजाइन कर सकते हो. आपके पास जब टाइम है तो आप उसको पूरा स्पेंड करके डिजाइन करके फिर कंपनी के एसेसरीज डिजाइन कर सकते हो. बट अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं केवल मेंशन कर रहा हूँ टेक्स्ट को कैसे यूज करना है, अरेंज कैसे करना है. लेकिन हाँ, वी नेवर फाइंड दीज काइंड ऑफ कंटेंट रिलेटेड विद द कंपनीज प्रोफाइल, because just a visiting card, it's a purpose to when the person is company's employee visiting anywhere, so he can introduce himself कि वो कौन है, कहाँ से आया, किस कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहा है, right? So that's the main motto for the visiting card, right? अपने और कंपनी के बारे में जानने के लिए देयर इज अ मेंशन ऑफ वेबसाइट. आप कंपनी के बारे में वहां से पता कर सकते हो. और जब वो आपसे मिलने गया, वो आपको विजिटिंग कार्ड शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपको कंपनी के बारे में बता ही देगा कि उसकी कंपनी क्या काम करती है. तो हम विजिटिंग कार्ड को ब्रोशर नहीं बना सकते. ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, ब्रोशर्स पे होती है, वेबसाइट्स पे होगी, ठीक है. सो यहाँ मेल आईडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वी हैव टू मेंशन द मेल आईडी. मैक्सिमम जो लेयर्स है हमारा टेक्स्ट है, इनको हम अलाइनमेंट करने के लिए हम यहाँ से सबको एक साथ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास अलाइनमेंट्स के ऑप्शन है, आप कहाँ अलाइन करना चाहते हो, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन. सो आप यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है. इज इट ओके? सो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये मेरे पास ऑप्शन है. और अभी मुझे क्या करना है कि सपोज मुझे कंपनी का एड्रेस यहाँ देना है कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो मुझे इस डिज़ाइन के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्ट करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो इस डिज़ाइन के साथ अगर मैं एड्रेस मार्क कर रहा हूँ, तो वो कहाँ होना चाहिए, कंपनी का वेबसाइट तो यहाँ आ गया, ठीक है. कंपनी की वेबसाइट हम इसके साथ यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि पॉइंट इसको यहाँ तक कैरी करेगा, जो कॉर्नर था, ठीक है. ये कॉर्नर्स के साथ कैरी कर रहा है, ये ज़्यादा बेटर लगेगा ऑप्शन, हम इसको अगर कॉर्नर के साथ यूज़ करें. सो वेबसाइट हम यहाँ दे सकते हैं. वेबसाइट इससे लिंक रहे तो हमने सेम कलर इसको यहाँ यूज़ किया है, राइट. और वी कैन स्विच द कलर ऑल्सो समटाइम इफ यू वांट. और वी नीड टू मेंशन द एड्रेस. तो हम इस कॉर्नर के साथ इस शेप को यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास कॉर्नर्स बचे हुए हैं. तो हम किस तरीके से शेप को यूज़ करें जहाँ हम एड्रेस के साथ कनेक्ट कर पाएँ. सर तो सबसे स्ट्रिप पहले ऐड तो कर दे. सॉरी, सर एक स्ट्रिप नीचे ऐड करना. स्ट्रिप अगर ऐड करेंगे तो बैलेंस नहीं करेगा. वो हम यहाँ से अगर लेके जाते हैं तो पूरा बैलेंस नहीं करेगा, ऊपर और नीचे सिमिलर नहीं आएगा. सो वी कैन डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन, कि हम यहाँ से कनेक्टिंग एक लाइन लेके जाएँ और उसको यहाँ ले जाएँ, या एक पैटर्न हम सीधे लाइन यहाँ मेंशन करें, किस तरीके से हम उसको यूज़ करें. सो दैट्स द पार्ट फॉर अ बेटर और गुड डिज़ाइनर, कि आपको ये पता लग रहा होना चाहिए कि आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस को आप कैसे यूज़ कर रहे हो, राइट. तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक अ कॉपी ऑफ this part, and I'm just typing the address. So always use text select, right? It creates your own layer already. So the address would be suppose 1 2 3 4, right?
reduce the size, control A, select for all and then reduce the size कि आपको कितना छोटा रखना है टेक्स्ट। मुझे टेक्स्ट का साइज काफी छोटा करना था, मैंने यहाँ पिक किया और इसको मैं प्लेस करके देखूंगा कि वो कैसा लग रहा है। तो सेंटर लाइन मेरा ये है, सेंटर लाइन से अगर बाहर जा रहा है तो वो इधर आ रहा है और इसके साथ अगर मैं प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एड्रेस इसके साथ अगर रख रहा हूँ तो वो यहाँ बेटर नहीं लग रहा। अब अगर मैं वेबसाइट के साथ रख रहा हूँ तो यहाँ वो कैसा लगेगा वो भी हमें देखना है। सो वी नीड टू अलाइन इट और मुझे लगता है इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और इसका रिड्यूस करके साइज इसके साथ अलाइन करने की कोशिश करता हूँ। सो माय अलाइनमेंट शुड बी this, select the both layer and then align it, right? और कौन सा बेटर लग रहा है, सेंटर लाइन करके देख लेते हैं। so I think center line is better। अभी मैं इसको अगर वहां से शिफ्ट करके इन दोनों लेयर्स को नीचे की तरफ मूव करता हूं तो कैसा लग रहा है। सो दिस इज द वे यू कैन डिजाइन योर कंटेंट। ऑलवेज यूज डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा ये नहीं करना कि आपको फिल एंड फिल करके आपको छोड़ देना है। सो आपके पास कंसेप्ट और आइडियाज अलग अलग होने चाहिए। ये एक स्टाइल हुआ। और एक और अगर यहाँ से किया जाए इसको बैलेंस, तो आई थिंक वी कैन क्रिएट अ कॉर्नर ऑल्सो और वी कैन यूज दिस शेप। सो अगर ये शेप मेरे पास है और मैं इसको ऑल्ट के साथ कॉपी करता हूँ और इस शेप को मैं क्या डिफरेंट यूज कर सकता हूँ वो आपको देखना है। तो अभी मैं इसका क्या यूज कर सकता हूँ कि वो ज्यादा बेटर लगे। सो आई एम जस्ट यूजिंग डिफरेंट पॉइंट। So I need this corner. मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉप कर रहा हूँ। तो जस्ट यूज डिलीट, कंट्रोल डी। अभी मेरे पास एक कॉर्नर है और इस कॉर्नर को मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ, कंट्रोल टी, रिड्यूसिंग द साइज, प्लेस जहाँ ये लाइन पे आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं टेक्स्ट और चीज़ों को अलाइन कर सकता हूँ। सो अभी मेरा जो इसका टेक्स्ट का साइज था 6 पॉइंट रेगुलर और मैं इसको भी रिड्यूस कर सकता हूँ, कंट्रोल ए and using the 6 point regular। so alignment इधर, मोबाइल को भी कम कर सकता हूँ। right, controller, control H for hiding all the part, so control minus। so ये एक डिजाइन बनता है। इसके अलावा we have lots of another options कि हम इनको अलग अलग शेप्स के साथ चेक कर सकते हैं, अलग अलग शेप्स के साथ ये किस तरीके का पैटर्न बनेगा, किस तरीके का डिजाइन बनेगा। so in this way you guys have to apply your own ideas on designing point of view। you need to use text tool। text से आप typographic logo बना सकते हो। typographic logo it means when you use only text for that, right? just use take text and the shape for the background। so you can create different text tools, text logo, or you have to use only text, align it and just design a visiting card। if you have already a logo design, so you just use your own logo, plan your company first, that's the most important thing। without planning a company you are not able to design better visiting card or pick a proper appropriate color for the company, right? so you need to understand that the importance of color theory begins when you finalize your concept। अगर आपके पास कंसेप्ट और आइडिया नहीं है, सो यू डोंट यूज एनी काइंड ऑफ कलर थ्योरी फॉर दैट, राइट? तो आपका जो भी लोगोज हैं जो आपने डिजाइन किए हैं, यूज योर ओन लोगो एंड प्रॉपर डिजाइन अ कंपनी, देन वर्क आउट फॉर द विजिटिंग कार्ड। इज इट ओके? एनी डाउट? आई थिंक
कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जो कुछ चीजें, जो टूल्स आज हमने इंट्रोड्यूस की, जैसे कि हाउ टू मर्ज द लेयर्स. For the merging layers, we need to use just control, select the both layers or 3 or 4 layer. So just use control E. So it merged already, merging layers. So if the layer would be merged, then you cannot select the whole different layers. तो आपको क्या करना है, बहुत सोच के लेयर्स को मर्ज करना है. ऐसे नहीं करना कि आपने कुछ काम नहीं किया और बीच में मर्ज कर दिया. मर्ज हो गया तो प्रॉब्लम करेगा, राइट. सो बाकी आपको डिफरेंट लेयर्स पे काम करना है. मर्जिंग लेयर का ऑप्शन होगा जब आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो गया. And instead of merging layer, you can use group also. So in a last session I used group, how to use a group and what the use of group. So in a last session I covered this. In this session I covered the text tool, merging layers options, and using different patterns, geometric shapes for the visiting card or any kind of design. So you can use any shapes, it's a elliptical, rectangular, or square mark tool. You can use anything, right? So design your own logo, use your own color. लेकिन विजिटिंग कार्ड के अंदर बहुत कम कलर यूज होते हैं, यानी आप मैक्सिमम 2 से 3 कलर से ज्यादा यूज नहीं करोगे. मल्टी कलर नहीं होना चाहिए विजिटिंग कार्ड, स्टैंडर्ड जितने भी विजिटिंग कार्ड होंगे. सो जस्ट गो थ्रू एंड चेक आउट द गुड रेफरेंसेस फ्रॉम इंटरनेट कि बेटर आइडिया क्या हो सकता है विजिटिंग कार्ड डिजाइन करने के लिए, कितने कलर लोग यूज करते हैं. ऑलवेज ट्राई टू यूज लिमिटेड फॉन्ट्स फॉर दैट. ओनली यूज 2 or 3 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स, दैट्स इट. साइजेस जो रीडेबल होगा वो 8 से 9 के बीच और 6 के आसपास होगा. इससे ज्यादा छोटा साइज यूज नहीं करेंगे हम, राइट. रीडेबल होना चाहिए. सो अगर हम इसको यहाँ 100% पे देख रहे हैं, अभी ये दिख रहा है ना नीचे आपको कॉलम में 100% पे देख रहे हैं, जो एक्चुअल साइज है वो क्या है विजिटिंग कार्ड का, ये है जो हमें प्रिंट होने के बाद दिखेगा. सो ऑल द टेक्स्ट इज रीडेबल. क्लियर है ना. तो जो एग्जैक्ट साइज है वो आप चेंज कर सकते हो. जैसे अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे चेंज करके, अगर सपोज मैं 20% करता हूँ, 20% पे ऐसा दिखेगा, और 100% जो एक्यूरेट साइज है उस पे ये जाके मुझे टेक्स्ट जो दिखेगा वो, अरे कौन ऐसा दिखेगा. ठीक है. सो यू कैन चेंज. हमेशा 100% जरूर करके चेक करो व्हेन यू फाइनल योर डिजाइन. तो जस्ट चेक आउट ऑन द मार्जिन ऑफ 100% कि 100% पे जाके कैसा दिख रहा है, यानी इट इज द एक्चुअल साइज ऑफ प्रिंटिंग. ये प्रिंट होके ऐसा आएगा. क्लियर है. कुछ पूछना है किसी को? नो डाउट. ओके.